اس بات کی طرف رہنمائی قرآن کرتا ہے کہ جو چیز بھی اس کائنات میں رب نے پیدا کی ہے، اللہ نے بارہا قرآن میں فرمایا لکم، اے انسان تیرے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم جس طرف بھی جائیں، جس اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں چیز کو دیکھیں، اس میں فائدہ انسان ہی کا ہے۔ غور کریں، قرآن بار بار اس عقیدے کو، اس نظریے کو دہرا رہا ہے کہ ہم نے فلاں چیز پیدا کی، فلاں کی، فلاں کی، فلاں کی، آخر میں جا کے اللہ فرماتا ہے انسان تیرے نفع کو پیدا کیا ہے۔ پھر اور جگہ پہ جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے فلاں چیز پیدا ہوئی، فلاں ہوئی، فلاں ہوئی، فلاں ہوئی، اے انسان ہم نے تیرے۔ غور تو کرے بندہ، جب ہر چیز اس کے نفع کے لیے ہے، آخر اس کو بھی تو کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا کہ نہیں جھکنا پڑے گا؟ جس نے سب کچھ اس کے لیے بنایا ہے، اس پہ پھر فرض بنتا ہے کہ اس رب کی بارگاہ میں جھکا رہے، اس رب کی بارگاہ میں جھکا رہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے کہاں سے نازل کیا، اور پھر وہ زمین کو سیراب کرتا ہے تو اس سے مختلف قسم کی ہم روزی پیدا کرتے ہیں، کچھ اس میں سے انسان استعمال کرتے ہیں اور کچھ جانور استعمال کرتے ہیں۔ غور کرنا، مثال اب سمجھانے جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، فرمایا حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ کہ جب پانی اس زمین کو پہنچتا ہے، اس میں کھیتیاں اگتی ہیں۔ کیا اگتی ہیں؟ پودے اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، مختلف قسم کے پھل اس سے اگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ اپنی جوانی اور شباب کو پہنچتے ہیں، وہ جو بھی پودا ہے، جس جنس کا بھی وہ درخت ہے، جو بھی نباتات ہیں، اللہ فرماتا ہے جب وہ اپنی جوانی اور شباب کو پہنچتے ہیں تو زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، وہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ بڑی زمین اس وقت بندے کو دیکھنے کو دل کرتا ہے جب اس پہ کوئی زراعت تیار ہوتی ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ زمین بڑی خوبصورت بن جاتی ہے، بڑی زیب و زینت والی ہوتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اس زمین پہ زراعت کرنے والا سمجھتا ہے میں تو اب اس پہ قادر ہو گیا ہوں، یہ تو سب کچھ میرا ہی کمال ہے، یہ تو سب کچھ میرا ہی کمال ہے، سب کچھ میں نے کیا ہے۔ اب غور کرنا ہے، اسی جگہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ دنیا کی زندگی کی مثال کس طرح دی جا رہی ہے۔ ادھر غور کریں، زراعت کے لیے سب سے پہلے زمین میں کیا ڈالنا پڑتا ہے؟ بیج۔ کیا ڈالنا پڑتا ہے؟ جو بھی جنس کی زراعت کوئی کرے گا اسی جنس کا تخم بیج اس کو ڈالنا پڑے گا۔ کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ ایک مردہ چیز، ایک مردہ شکل میں زمین کے اندر موجود تھا۔ وہ بیج کہاں موجود تھا؟ زمین کے اندر۔ اللہ پاک نے قدرت کاملہ اس پہ لگائی، اس کو ایک جاندار کی شکل عطا فرمائی، ایک پودے کی شکل و صورت دی، وہ زمین کو چیر کے، زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر نکل آیا۔ زمین کو پھاڑتے ہوئے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سب قرآن میں موجود ہے، یہ سارے سٹیج، یہ سارے مختلف ادوار رب نے قرآن میں ذکر کر رکھے ہیں۔ وہ پہلے مردہ بیج ہوتا ہے، اس کو ڈالتے ہیں، اوپر زمین برابر کر دی جاتی ہے، مٹی کیا کر دی جاتی ہے؟ برابر۔ وہ نظر ہی نہیں آتا، اس کا کوئی نام و نشان ہی اللہ کی قدرت سے۔ کچھ عرصے بعد وہ بالکل ایک ننھا سا پودا ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا، زمین کے اوپر نظر آتا ہے کہ اب بیج پودے کی صورت میں بن چکا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت اس پہ لگتی رہتی ہے، وقتاً فوقتاً مختلف ادوار میں، حتیٰ کہ وہ شباب کو آ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ وہ شباب کو اپنی آخری سٹیج پہ آتا ہے۔ مینوان اس طرح غور کریں، انسان کو سمجھایا جا رہا ہے تیری زندگی کیا ہے۔ آج اگر کوئی شخص 50 برس کا ہے تو 50 برس سے پہلے وہ غور کرے وہ کیا تھا۔ اگر کوئی آج 30 برس کا ہے وہ غور کرے 31 سال پہلے، اس سے پیچھے اس کو کوئی وجود تھا۔ وہ غور کرے جس کی 20 سال عمر ہے، آج سے 20 سال یا 21 سال پہلے اس کا کوئی وجود۔ سب سے پہلے کس طرح نظام بنا؟ ایک شخص کی پشت سے ایک خاص قسم کا مادہ نکل کر دوسرے شخص کے پیٹ کی طرف، رحم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ جس طرح یہاں چھپا ہوا ایک بیج ہوتا ہے، اس طرف بھی وہ مردہ چھپا ہوا ایک بیج ہے۔ اس زمین والے بیج کی بھی نشو و نما رب تعالیٰ اپنی قدرت سے فرماتا ہے۔
और जो मां के पेट में बीज बोया जा रहा है वो पानी का कतरा और इतना खफीफ होता है जिससे इंसान की रब तखलीक फरमाता है। अगर उस कतरे को किसी को हिम्मत हो जाए सामने ले आए तो वो कतरा बगैर मखसूस आला जात के बंदे को नजर आता। इतना बारीक पानी का वो कतरा होता है, इतना खफीफ कतरा होता है। आज वो सोचे जो जवानी में शबाब के आलम में बदमस्त हो गया है, आज उस नौजवान को दावत फिक्र देता है कुरान, जो नौजवानी के बलबूते पे अल्लाह की बारगाह में झुकने से गफलत का शिकार हो चुका है। आज उस इंसान को कुरान झंझोड़ता है, उससे पूछता है जिसको आज अल्लाह की बारगाह में झुकने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए फुर्सत नहीं, दुनिया के गंदे से गंदे काम के लिए उसके पास टाइम भी है, उसके पास फुर्सत भी है, उसकी अकल भी वहां काम उसको देती है। उसको अगर अकल नहीं तो सिर्फ दीन के मामलात में नहीं है, अगर फुर्सत नहीं तो दीन के कामों के लिए नहीं है। आज वो अपने आप से पूछे तो सही, तेरे ऊपर ये सारी कुदरत कामला तू कहां से उठा है और कैसा हसीन और जमील बना, ये कुदरत किसकी है? गो जितना बेइंसाफ शख्स हो, जितना ही बेइंसाफ हद धर्म हो, जब उसे इस अंदाज में पूछा जाएगा तो फौरन कहेगा ये सारी कुदरत अल्लाह की है। क्योंकि यह तो फिर भी मुस्लिम है। 19वें पारे में सरकार मदीना अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये जो बुतों को अपने हाथों से पत्थरों को घड़ घड़ के अपना माबूद बना के उनको पूछते हैं, इन मुशरिकीन मक्का से पूछिए इस जमीन और आसमान का खालिक कौन है? अल्लाह ने भी ये उसलूब काफिरों के सामने भी रखा है कुरान में। ए महबूब जब आप इन बेईमानों से पूछेंगे सयकून अल्लाह, तो अन करीब कहेंगे सब चीजों का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। मुशरिक भी यही कहते थे। एक मुसलमान तो लाजमी तौर पे यही जवाब देगा कि ये सारी कुदरत किसने लागू की है? पौधा जवानी को आ गया, शबाब को आ गया, अब उसका मालिक समझता बस मैं अब हर तरह से इस पे क्या हो चुका हूं, काबिल हो चुका हूं, मैं अब पता नहीं क्या बन चुका हूं। इधर बंदा जब मां के पेट में होता है कुछ नहीं होता, अल्लाह की कुदरत से लोथड़ा बना, फिर कुछ और बना, फिर कुछ और बना, फिर इसमें रूह डाल दी गई, फिर इसके जिस्म अजाब बनना शुरू हो गया। हत्ता कि एक ऐसा वक्त भी आया जिस तरह वो बीज जमीन से बाहर निकल के नजर आने लगा, इसी तरह ये भी मां के पेट से बाहर आया और दुनिया वालों को नजर, जिस तरह वो बढ़ता रहा अपने शबाब को पहुंचा, जिसके लिए अल्लाह फैसला करता है उस शख्स को फिर अल्लाह जवानी की तरफ ले आता है। उम्र की भी मुख्तलिफ किस अदवार हैं अपनी जिंदगी के एतबार से। कुछ ऐसे हैं जो मां के पेट में ही मर जाते हैं, यह भी रब की कुदरत है। कुछ ऐसे हैं पैदा होते ही मर जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पैदा भी हुए, पैदा होते हुए ना मरे लेकिन चंद माह के बाद वो मर गए, कुछ चंद सालों के बाद मर गए, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको रब शबाब के आलम तक ले आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको फिर बुढ़ापे की तरफ मुंतकिल कर देता है। ये सब की सब बातें इंसान को मजबूर करती है अपने रब की बारगाह में झुकने पे और अल्लाह की कुदरत पे सोचने और तदब्बर तफक्कुर करने पे मजबूर करती है। आखिर वो कोई तो है जो ये सारे स्टेज और ये सारे द्वार मुझे तय करा रहा है, आखिर वो कोई तो है, वही मालिक हकीकी है, वही मालिक है। अब ये जवान हुआ तो इसके मालिक ने समझा मैं अब पावरफुल हूं, अब मुझे किस बात की परवाह है, मेरे इतने मुरब्बे जनाब फलां ज़रात से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और इधर ये इंसान क्या होता है, जवान होता है, इसकी हड्डियों में अल्लाह पावर कुव्वत और ताकत भर देता है। अब जिस तरह वो बदमस्त हो गया अपनी ज़रात को देख के, इधर ये भी क्या हो गया, अपनी जवानी के बलबूते पे बदमस्त हो गया। वो बदमस्ती है ना जो अल्लाह की बारगाह में झुक नहीं सकता। गलत तो नहीं कह रहा, वो गाफिल इंसान है कि नहीं है जो अल्लाह ने जिंदगी गुजारने का उसूल दिया, सरकार मदीना ने हमें शरीयत दी, वो कितना बड़ा बेहिस्सो बेलगाम इंसान है। सरकार को नबी भी मानता है, रब को रब भी मानता है, इसके बावजूद अल्लाह रसूल के बताए हुए काम करता। खुद सोचे वो इंसान मैं किस कदर मुतकब्बिर बन चुका हूं, किस कदर सरकश इंसान हूं कि मैं अपने रब का भी नाफरमान हो चुका हूं। जो भी अल्लाह के दिए उसूल के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता वो सोचे
اب یہ जवानी में आया, जिस तरह वो ज़राअत का मालिक, अल्लाह फरमाते जब वो इस ज़हन पे आ गया, गौर कर रहे हैं, अताहा अमरुना लैलन औ नहारा, वो तो अब सोच के बैठा बस हम अमीर हो गए, हम ये हो गए, मैंने इतनी मेहनत की, मैं वे कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अल्लाह फरमाता है वो अभी उसी शबाब के आलम में होती है, वो ज़राअत, वो पौधा, वो खेती अभी उसी शबाब के, और उसका मालिक मुख्तलिफ ख्वाब देखना शुरू करता है। अताहा अमरुना लैलन औ नहारा, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाता है, या रात को या दिन को, या रात को या दिन को, फजअलनाहा हसीदा कअल्लम तगना बिल अम्स, फरमाया हम उस खेती को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उस शबाब के आलम में आए हुए पौधों को, उस शबाब के आलम में आई हुई ज़राअत को क्या कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। देखें, फजअलनाहा हसीदा कअल्लम तगना बिल अम्स, ऐसे कर देते हैं कि वो फिर मालिक खुद सोच रहा होता है, कल तक तो शायद इसका कोई नामो निशान ही नहीं था, जिसको कल जिसकी वजह से बदमस्त हुआ, जब अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया, अब वो खुद कह रहा है इस जमीन पे तो कभी कोई चीज हुई नहीं थी, इस जमीन पे तो कभी कोई चीज। इसी तरह जो इंसान बदमस्त हो जाता है, अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाता है, बेहिस व बेलगाम हो जाता है, अल्लाह का कुरान कह रहा है अताहा अमरुना लैलन औ नहारा, उसके पास मौत का फरिश्ता या रात को आ पहुंचता है या दिन को आ पहुंचता है। क्योंकि शुरू में फरमाया ना, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमा अनज़लनाहु मिनस समा, कि तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसे ही है जिस तरह हमने आसमान से क्या नाजिल किया, पानी, फिर उसको जमीन तक पहुंचाया, उस पानी के जरिए से पौधा उगा, फिर वो शबाब को आया, फिर अल्लाह का अज़ाब आया और वो जमीन से बिल्कुल हमेशा के लिए उसका नामो निशान ही खत्म कर दिया गया। अब लोगों ने कहना शुरू किया कअल्लम तगना बिल अम्स, इस जमीन पे तो कभी ऐसी चीज हुई नहीं थी, इस जमीन पे तो कभी ऐसी चीज। फरमाया यही तेरी जिंदगी की मिसाल है, ऐ इंसान यही तेरी जिंदगी की मिसाल है। गौर करे इंसान, कुरान से बड़ी कोई किताब हमारे पास मोतबर ऐनुल हक और नहीं मौजूद, जिसको पढ़ के हम उम्मत मुस्लिमा को दर्श दें कि दुनिया की जिंदगी क्या है, इसकी कदर मंजिलत कितनी है, ये कितना खफीफ और कम जिंदगी है। ये आखिरी निसाब है हमारे पास, अल्लाह का मुकद्दस कलाम कुरान मजीद। और कुरान ने कह दिया जब बंदे गफलत का शिकार हो जाते हैं, जब वो अल्लाह की इबादत से रूह गर्दानियां करते हैं, फिर अताहा अमरुना लैलन औ नहारा, फिर उसकी जिंदगी को खत्म करने वाला हुक्म या दिन को आ पहुंचता है या फिर चंद दिन गुजरते हैं, फिर लोग क्या समझते हैं कअल्लम तगना बिल अम्स, गोया वो दुनिया में आया ही नहीं था, गोया वो दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम और निशान ही मिट जाता है। खरबों लोग इस कायनात में आए, आज हम कितनों को जानते हैं, खरबों लोग आए। चलो लोगों को छोड़े, अपने ही नसब को देख ले, मैं हूं, मेरे वाले साहब हैं, उनके वालिद मोहतरम थे, मजीद आगे उनके वालिद मोहतरम 6-7 नस्ल तक जाए तो हमें नाम तक नहीं पता उन लोगों का। तो कुरान ने जो कहा वही हुआ, कअल्लम तगना बिल अम्स। बाद में लोग समझते हैं शायद वो दुनिया में आया ही। भाइयों, ये जिस तरह और मखलूक के साथ हुआ है, इसी तरह ये मेरे साथ भी होने वाला है और आप भाइयों के साथ भी होने वाला है। इस कायनात में जो भी आया है, रब का कुरान उसको चैलेंज करते हो समझा रहा है कि इंसानियत चाहते हो, अगर अपना कोई रुतबा मकाम चाहते हो तो फिर गफलत की जिंदगी बसर ना करो, फिर बेदार हो जाओ, जागो, जिस तरह रब की शरीयत कहती है उस तरह जिंदगी बसर करो। भले तुम्हें गुजरे हुए 1000 साल ही क्यों ना बीत जाए, तुम्हारा नाम आज भी गौसे आजम के नाम की वजह से जिंदा हो जावेद है। ये देखे, मैं क्यों आज गौसे आजम को याद कर रहा हूं, पूरी दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम क्यों ले रही है, दाता अली हजरी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम क्यों लिया जाता है। गौर किया जाए, सुल्तान और आरिफीन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम क्यों लिया जाता है। उन लोगों ने दुनिया में आके उन उसूलों के मुताबिक जिंदगी बसर की है जिनके मुताबिक जिंदगी बसर करने का रब रसूल की तरफ से हुक्म था।